کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزان ہوں۔ جس وقت تو نے محیط کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند، غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں، تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ اے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ آمین۔ خداوند کے پاس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی 14 آیات کی آج ہم تلاوت کریں گے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام آمجد ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آمین۔ خدا کے زندہ و مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
खुदा का नहाय शुक्र हो। आमीन। का पहला हिस्सा दोबारा से देखें, बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफा उसका 64वां बाब और उसकी पहली 4 आयत को दोबारा से पढ़ता हूं, फिर पहली आयत को हम शुरू करेंगे और इस सारे चैप्टर को आज थोड़ी देर में हम देखेंगे। यहां पे लिखा है कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्जान हो। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजिर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। मेरे चीजों पहली आयत में लिखा है कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खा जाएं और तू अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता है कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, पहाड़ तेरे हुजूर लर्जिश खा जाए और तू अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। मेरे चीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में से इस यशायाह नबी के सहीफा को देखते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि बाइबल मुकद्दस की मजमूई तौर पर 66 किताबें हैं और यशायाह नबी के सहीफा के 66 बाब हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मतलब जितनी भी पेशीन गोइयां हैं, आपकी पैदाइश के तवसत से, आपकी मसलूबियत के तवसत से, या फिर आपके मुर्दों में से जी उठने और आमदसानी के तलक से हैं, सेकंड कमिंग के तलक से हैं, वो सबसे ज्यादा जो है इसी अंजील के अंदर पाई जाती हैं। और बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे मुफस्सरीन इसे पुराने अहदनामा की अंजील भी कहते हैं और यशायाह नबी को पुराने अहदनामा का अंजील नवीस नबी भी कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम इस रेफरेंस में देखते हैं तो यहां पर भी हमें हमारे निजात दहिंदा के तल्लुक से बहुत सारी बातें मिलती हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब ये कहा जाता है कि काश तू आसमान को फाड़े और उतर आए, पहाड़ तेरे हुजूर लर्जिश खा जाएं और तू अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। मेरे चीज़ों, इस आयत का पस मंजर वही है जो हमने पिछले दिनों सीखा था, जब खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यूहन्ना नबी जो थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे, वो इसराइल के बियाबान में इसराइल की कौम के अंदर कलाम कर रहे थे और कह रहे थे खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते बिल्कुल सीधे बनाओ। खुदा का कलाम बयान करता है, चल उससे खुदा का कलाम बयान करता है 750 साल पहले ये बात यशायाह नबी ने बनी इसराइल के बियाबान के तल्लुक से की थी। हमने उस दिन सीखा था कि ये बियाबान क्या था। खुदा का कलाम बयान करता, जब खुदा के लोगों ने खुदा की नाफरमानी की, उसकी शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, अपनी मन मर्जियां की, बुत परस्ती की, खुदा की इबादत के निजाम को तर्क कर दिया, खुदा का कलाम ये बयान करता खुदा ने भी उन्हें तर्क कर दिया और गैर कौमों को, असूर को, बाबल को इस्तेमाल किया, नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया कि उनको बाबल की 70 साल गुलामी में उन्हें ले जाए और वो बेबस हो गए, बेकस हो गए। खुदा का कलाम बयान करता है, उस मायूसी की हालत में खुदा का कलाम बयान करता है, जब वो मशरिक की तरफ देखते हैं, मगरब की तरफ देखते हैं, शुमाल की तरफ देखते हैं, जनूब की तरफ देखते हैं, उन्हें कोई मदद नजर नहीं आती, उनकी असीरी का, गुलामी का कोई हल उन्हें नजर नहीं आता। और फिर मेरे अजीजों, वो अपनी आंखें उठाते हैं आसमान की तरफ और आसमान की तरफ उठाते हैं और वो खुदा जिसने उन्हें बताया था आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी है, उसके हुजूर वो दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, इस्तदा करते हुए कहते हैं खुदावंद
काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, हमारी इस गुलामी से हमें निजात दे छुड़ाए। कोई हमारा मददगार नहीं, कोई हमारा मोहसन नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब वो कहते हैं काश, ये उस वक्त कहा जाता है जब आप चारों तरफ से बेबस हो जाते हैं, आपकी हिम्मत, आपकी कुव्वत, आपकी तदबीरें, आपके सोचे, आपके ख्यालात जवाब दे जाते हैं। उस वक्त कहते हैं काश ऐसा हो सकता। बनी इसराइल ऐसी ही मायूस कुन हालत का शिकार थे मेरे अजीजों। उस मायूसी की हालत में वो खुदावंद को पुकारते हैं कि खुदावंद अब तू अपने आसमान को खोल दे हमारे लिए, तो खोल दे, वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, फिर आप जानते हैं जब आप पढ़ते हैं 70 साल सीरी के बाद खुदा ने गैर कौम बादशाहों को ही अक्सवेरस को और तक्षिश्ता को खुदा का कलाम बयान करता इस्तेमाल किया, और अपने बंदा नहमिया को, अज़रा को इस्तेमाल किया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि बनी इसराइल का वो इलाका जिसके बारे में यहां भी लिखा हुआ है कि तेरे पाक शहर बेअमान बन गए, सयून सुनसान हो गया, यरूशलेम वीरान है, हमारा खुशनुमा मक़दिस जिसमें हमारे बाप दादा तेरी परस्तिश करते थे आग से जला दिया गया है, हमारी नफीस चीजें बर्बाद हो गई हैं। ऐ खुदाबंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोके रहेगा? क्या तू खामोश रहेगा? क्या तू हमारी बदहाली के लिए कुछ नहीं करेगा? आसमान को फाड़ दे उतारा और हमारे लिए कुछ कर, इसलिए कि हम बेबस हो गए हैं। खुदा ने गैर कौमों को, बादशाहों को इस्तेमाल किया, अपने बंदों को इस्तेमाल किया, और दोबारा से 70 साल के बाद उन्हें रिस्टोर किया। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में इस चीज को पढ़ते हैं तो बनी इसराइल की ये गुलामी वाली कोई नई बात नहीं थी। 3 बड़ी गुलामियां बाइबल मुकद्दस के अंदर उनकी हैं। पहली गुलामी उनकी मुल्क मिस्र के अंदर थी, दूसरी गुलामी जो थी वो बाबल की थी, और तीसरी गुलामी उस वक्त थी जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे, वो रोमियों की गुलामी थी। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब उन्होंने इस्तदा की तो खुदा का कलाम बयान करता, खुदा को पुकारा और खुदा ने अपने आसमान को खोला, उन्हें रिलीज और आजाद किया, रिस्टोर और बहाल किया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इसी तलक से बयान करता है कि जब मिस्र, मुल्क मिस्र के अंदर थे, जैसा यहां पे भी लिखा है कि जब वो खुदा को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है, उन्हें खुदा का वो काम याद आता है, खुदा की अजमत याद आती है। यहां पे लिखा है कि जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजर भी ना थे, तू उतर आया। खुदा का कलाम कहता है मुल्क मिस्र के अंदर 430 साल गुलामी के अंदर खुदा का कलाम बयान करता, खुदा ने उन्हें दोबारा से याद किया, अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को इस्तेमाल किया, उससे कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मुल्क मिस्र में बिगाड़ लेने वालों के सबब से खूब देखी, मैं उनके दुखों को जानता हूं, मैं उतरा हूं कि उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क में पहुंचाऊं यहां दूध और शहद की नदियां रहती हैं। खुदावंद फिक्र करता है, उनके लिए आसमान खोला, उतरा, अपने बंदों को इस्तेमाल किया, उन्हें आजादी दी, रिहाई दी। लेकिन उन्होंने फिर वही हकदर्मी की, फिर वही नाफरमानियां की, फिर 70 साल गुलामी में चले गए। मेरे चीजों खुदा का कलाम कहता, वहां पुकारते हैं, वहां चीखते हैं, वहां अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और खुदा का कलाम बयान करता है, फिर उन्हें रहा कर दिया जाता है। खुदा का कलाम बयान करता है, आप जानते हैं जब आप तारीख में आते हैं, आगे देखते हैं रोमियो की गुलामी में थे, एक वक्त में खुदा ने उन्हें रोमियो की गुलामी से भी आजाद किया, और आज आप देखते हैं कि बनी इसराइल पूरी दुनिया के अंदर एक आजाद मुल्क की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह का पीरियड आया, जब ये वक्त आया, खुदा का कलाम बयान करता है, तो खुदा के कलाम ने यह सिखाया कि इस गुलामी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस्मानी गुलामी जो है, आजादी अच्छी चीज है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस्मानी गुलामी की निस्बत एक और बड़ी जबरदस्त, बड़ी सख्त गुलामी है, जिसके अंदर इंसान गिरफ्तार रहता है। इंसान को उसके लिए भी खुदा को पुकारने की जरूरत है, उसे भी, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा सीरी के बारे में कहता है, बुजुर्ग यिर्मयाह से कहता है कि मेरे लोगों को क्या कि जिस मुल्क में मैंने तुम्हें असीर करवा कर भेजा है, उसकी सलामती के लिए दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है।
लेकिन जब यीशु मसीह आए तो आपने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उन्होंने कहा हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, झूठ बोल रहे थे। 3 गुलामियां तो इंटरनेशनल थी, इसकी खुदा का कलाम बयान करता है। लेकिन उस वक्त भी खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता है इस दुआ का जवाब दिया गया। यशायाह नबी की दुआ का, बनी इस्राएल की दुआ का, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। क्योंकि हम अपनी जात में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आगे जाके फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि बस बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो सकते हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम हमें यह मौका और वक्त देता है। आज देखने की जरूरत है कि जब खुदा के लोगों ने पुकारा इंसान को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब आप चारों तरफ देखते हैं कोई मदद नहीं आती, तो फिर इंसान अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाता है, आसमान की तरफ उठाता है। और जब उसका आसमान खुलता है तो फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है उसके लिए मदद आती है। और खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आपको पता है कि जब वो पैदा ही हुआ तो ऐलान किया तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, बचा देगा। जब चरवाहों पर ज़ाहिर हुए तो कहा तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। मेरे जीजो, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज इंसान के लिए वो मदद आसमान से आई है। खुदा ने आज से 2000 साल पहले आसमान को फाड़ दिया, आसमान को खोल दिया है और अपने लोगों की मदद के लिए उतरा है। जरूरत इस बात की है आज अपने आप को चेक करें, इस मौके को अवेल करें कि जब खुदा ये मदद मुहैया करता है तो हम इस मदद से, इस मौके से फायदा उठाते हैं या नहीं। क्योंकि कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपने आप को पाक कर लिया या मैं साफ हो गया हूं। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है जब ये लोग खुदा से मदद तलब कर रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे, उसके असीम कामों को याद कर रहे थे, आज हमें भी याद करने की जरूरत है जो काम 2000 साल पहले सलीब पर मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने किया। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, इसी चैप्टर की 5वीं आयत में लिखा है, तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। ये जरा चेक करें अपनी जिंदगियों को। कहते हैं कि गुनाह किया और मुद्दत मदीद से करते रहे, उसी कामों में लगे रहे। सारा साल हमारा जो मसीह के बगैर गुजरता, खुदा के बगैर गुजरता, क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानंद है और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं। हमारी बदकिरदारी आदि की मदद हमको उड़ा ले जाती है। खुदा का कलाम बयान करता है, बेआबान बन गया था, उजड़ गया था सारे का सारा इस्राएल। खुदा का कलाम बयान करता, खुदा तक के घर को नबूकदनेस्सर ने जो था वो तहस नहस नेस्तो नबूद कर दिया था, मुकम्मल तौर पर बेआबान हो चुका था। लेकिन कलाम बयान करता है मसीह यीशु के पीरियड में ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इंसान की रूह के अंदर ये सारा बेआबान था, बल्कि इंसान की जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर ये सारी तबाही और बर्बादी पाई जाती है। लिखा है, और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को माता करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। खुदा का कलाम बयान करता है। जरा अपने पूरे सारे साल का रिव्यू करें, चेक करें ये साल किस तरह से आपने गुजारा है, कैसी वबाएं, बीमारियां, मुश्किलात, मसाइल आपकी जिंदगी में आए हैं। खुदावंद ने फिर भी आपको संभाले रखा है। तो अब यह खुदावंद, तू हमारा बाप है, तू हमारा बाप है। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि एक आम मानों में खुदा सारी कायनात को पैदा करने वाला और उनका परवरदिगार है, चलाने वाला उनका बाप है। बनी इस्राएल के लिए उसने कहा था, इस्राएल मेरा पहलौठा है, चुनिंदा है, इसलिए उसे बाप कह सकते थे। लेकिन मेरे और आपके लिए जो बाप होने का, खुदा के बाप होने का एहसास है, वो बहुत आला है। इसलिए कि खुदा का कलाम बयान करता है
کہ جتنوں نے اسے یعنی خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उसे उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो आज अगर हमारी जिंदगियां भी, और यकीनन हमारी जिंदगियां ऐसी ही हैं, खुदा का कलाम बयान करता है, बुजुर्ग सुलेमान कहते हैं कि कौन कहता है कि मैंने अपने आप को पाक कर लिया है, कौन कहता है कि मैंने अपने आप को साफ कर लिया है? कोई नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाहों के इकरार में हमने क्या कहा? हम में कुछ सेहत नहीं है, भटकी हुई भेड़ों की मरद है, सारा साल अपने मंसूबों की ज्यादा पैरवी की है, अपने दिल के मंसूबों की पैरवियां करते हैं, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो ना करने वाली बातें थी उनके पीछे भागते थे। खुदा का कलाम बयान करता है, बुजुर्ग यूहन्ना, बुजुर्ग यशायाह अपने पहले चैप्टर में कहते हैं सर से लेकर पांव तक कहीं कोई सेहत नहीं है। मतलब क्या? ये सोचे क्या है, किधर है, आंखें क्या करती हैं, कान क्या सुनते हैं, मुंह क्या बोलता है, हाथ क्या करते हैं, पांव किस तरफ जाते हैं, सारी चीजों को देखने की जरूरत है। कुछ सेहत नहीं है, करने की क्या जरूरत है? मसीह यस्सु के वसीला से बाप के पास आने की जरूरत है। कौन सा सुने? तो अभी खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है, तेरी दस्तकारी है। खुदा के किरदार को बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ तशबीहात में बयान किया गया है, और यहां पर खुदा को एक दस्तकार कहा गया है, सनतकार कहा गया और कुम्हार कहा गया है। और आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में इसकी क्या वजह है? कलाम मुकद्दस में खुदा के किरदार को, खुदा की दस्तकारी को कुम्हार की दस्तकारी के साथ तशबीह दी गई है, और उसकी वजह जरा देखें। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं, और वहां पर यही लोग जब खुदा को रद्द कर रहे थे, खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा ने सिखाने के लिए कि खुदा के हुजूर अगर कोई झुक जाता है, अपने आप को, अपने खानदान को खुदा के हाथों में दे सकता है, खुदा उन्हें बदल सकता है, उन्हें तब्दील कर सकता है। आज हमारी हालत मायूस कुन नहीं है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, बुजुर्ग यिर्मयाह को भेजा कि तू कुम्हार के घर चला जा। तू कहां चला जा भाई? कुम्हार के घर चला जा। वो कुम्हार के घर गया, खुदा ने फरमाया इसके पास बैठ जा। बुजुर्ग यिर्मयाह इस बात को बड़े हैरान हुए कि खुदा मुझे क्या हुक्म दे रहा है। तो अभी खुदा का कलाम बयान करता है, जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, एक बर्तन बनाना शुरू किया, और लिखा वो बर्तन उसके हाथ में बिगड़ गया, वो बर्तन उसके हाथ में बिगड़ गया। लेकिन कुम्हार ने क्या किया कि उसी मिट्टी से, बिगड़े हुए बर्तन से एक और बर्तन बना दिया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि यिर्मयाह से कहा तूने कुछ सीखा, तुझे पता चला मैंने तुझे क्या सिखाया, मैंने तुझे क्या बताया है? खुदा का कलाम बयान करता है कि ये शख्स जो है, जिसके हाथ में मिट्टी है, इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है। ये शख्स कुम्हार जो है, इसी मिट्टी से वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी बना सकता है, और इसी से खुदा का कलाम यह बयान करता है हंडिया बना सकता है, जिसमें हमारे लिए मजेदार खाने बनाए जा सकते हैं। वो इसी से, इसके लिए इस मिट्टी से घड़ा बना सकता है, जो हमारे पीने की जगह बन सकता है। लेकिन वो इसी से मिट्टी से खूबसूरत गुलदान भी बना सकता है, जिसमें फूल रखे जा सकते हैं। वो उसी मिट्टी से खूबसूरत सराही बना सकता है, जिसमें बादशाह के लिए मैं रखी जाती थी। वो खूबसूरत इत्रदान बना सकता है, जिसमें इत्र जमा किया जाता था। खुदा का कलाम ये बयान करता है, वो उससे खूबसूरत जाम बना सकता है, जो बादशाह के होंठों से लगाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं खुदा के कलाम के लिए। खुदा का कलाम बयान करता है, मुकाशवा क्या दिया कि अब ये जो लोग असीरी में चला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो बीमारियों में है, वो रूहों के अंदर है, बेदीनी के अंदर है, नापाकियों में अंदर है, नाचाकियों के अंदर है। अगर मेरे हाथ में दे दिए जाते, अपने आप को पेश करते, तो आज इनकी सूरत हाल फर्क होती। खुदा का कलाम में फर्क होती। जिस तरह से कुम्हार ने एक नया बर्तन बना दिया है, इन लोगों ने भी मेरे हाथ में मुझे दिया होता, तो आज इनको ये ना कहना पड़ता काश तू आसमान को फाड़ दे और नीचे उतर आए। मेरे चीजों, आपको पता बाग एदन के अंदर
خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس 7 دنوں کے پیریڈ کو پڑھتے ہیں، خدا نے سارا کچھ بنایا، ساری چیزیں خدا نے حکم کی، کلمے کے ذریعے سے مسیح کے توسط سے ساری چیزیں بن گئی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور ہو گئی، پیڑ پودے ہونے چاہیے ہو گئے، چاند تارے ہونے چاہیے ہو گئے، خدا کا کلام کہتا پرندے ہونے چاہیے ہو گئے، خدا کا کلام کہتا جڑی بوٹیاں ہونی چاہیے ہو گئی۔ لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو خدا کا کلام بیان کرتا پاک تصویر کے تینوں قانون کٹھے ہیں، اور خدا کا کلام بیان کرتا وہاں کے لکھا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ انسان خدا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پریز دی لارڈ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ جب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو پسند کرتے ہیں، آپ کو اس کام سے، اس شخص سے، اس بات سے محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے، مسیح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کمہار، خدا کا کلام بیان کرتا دستکار ہے خدا، سنتکار ہے، تخلیقکار ہے ہمارا، ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ کیوں یہاں پہ دوبارہ پکارا؟ اس لیے کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اسیری میں گئے، بگڑ گئے۔ جس طرح سے وہ برتن کمہار کے ہاتھ میں بگڑ گیا تھا، خدا کے لوگ بگڑ گئے، دور چلے گئے، بت پرستی شروع کر دی، شراب نوشیاں، نشے بازیاں شروع کر دی، بگڑ گئے۔ اب ضرور تھا کہ اس کو دوبارہ سے درست کیا جاتا، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی لیے جس نے ماگیدن کے اندر اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جب دوبارہ آیا تو خدا کا کلام کہتا ہے جو حوالہ سنا، کلام مجسم ہوا، چیزوں کو تخلیق کرنے والا تھا، آدم کو بنانے والا تھا، مجسم ہوا، فضل و سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کا جلال۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اب وہ دوبارہ اس بگڑے ہوئے برتن کو درست کرنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن کلام بیان کرتا ہے وہاں پر اس نے مٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ اس کو بنایا تھا، لیکن یہاں پر جب وہ بگڑے ہوئے برتن کو درست کرنا چاہتا ہے تو پانی کو نہیں، اپنے خون کو استعمال کرتا ہے، اسے اپنا خون بہانا پڑا ہے، شریر بچانا پڑا ہے، اس لیے کہ وہ محبت رکھتا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس نے بنایا ہے، آخری دن کو بنایا ہے، پہلے آپ کے لیے وہ سارا کچھ بنایا تھا جس کے لیے ضرورت تھی۔ بگڑ گئے تو دوبارہ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے زمین پر آ گیا، دوبارہ سے اس آہ کو سن لیا، التجا کو سن لیا، بے بسی کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل غلامی کے اندر، اسیری کے اندر چلا رہے تھے، کاش تو آسمان کو پھاڑ دے اور اتر آئے۔ ہر انسان کے اندر ایک خلا ہے میرے عزیزو، گناہ کی وجہ سے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپتے ہیں میری جبین نیاز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے اوف پہ بند ہے، میرے جرم کھانا خراب کو تیرے اوف پہ بندہ نواز میں۔ میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے، اس کا دل یہ کہتا، اس کی روح کہتی ہے کاش تو آسمان کو پھاڑ دے اور نیچے اتر آئے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ مسیح مجھ سے کتنے فاصلے پر ہے، بھائی میں یاد آپ کو مسیح مجھ سے کتنے فاصلے پر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا خدا نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے، زمین پر اتر آیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر انسان کے اندر پائے جانے والے اس خلا کو، گناہ کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ بیٹے نے کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے وہ گناہ کا غلام رہتا ہے۔ سنیں بھی غور سے، توجہ سے، مہربانی سے خدا کے کلام کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں، اپنی گناہوں کو پالش کرنے کی کوشش نہ کریں، چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ کلام یہ بیان کرتا ہے جو کہ گناہ کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا، جو اس کا اقرار کر کے مصرف کی طرف اس کو ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ شخص کی پوری دنیا کی آہ ہے، کاش کہ وہ آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے بلاخر خدا نے اس بات کا فیصلہ کیا اور آسمان کو کھولا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے ناصرت میں ایک معمولی سا گھر ہے، وہاں پہ ایک معمولی سا خاندان ہے،
जिब्राइल को भेजा जाता है, मां मरियम के पास खुशखबरी दी जाती है कि जाके कह दे तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदा का कलाम बयान करता, खुदा ने आसमान खोल दिया, अपने कलाम को नाज़िल करना शुरू कर दिया। खुदा का पाक कलाम बयान करता, जब पैदा होने वाला था फिर आसमान खुला, फिर मैसेज आया, फिर आसमान को फाड़ा गया और कहा गया जाके ने कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। 30 साल खामोशी का पीरियड है। यीशु मसीह खुदा का कलाम बयान करता अपनी खिदमत के लिए तैयार हो रहे हैं, और जब खिदमत का आगाज किया, बैप्टाइज हुए दरिया यरदन के अंदर, आसमान फिर खुलता है और फिर आवाज आती है तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं बहुत खुश हूं। खुदा का कलाम बयान करता है जब अपनी खिदमत का आगाज किया, चलाना शुरू किया, खुदा ने जगह बजगह आसमान से इस बात की कंफर्मेशन की कि ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा का कलाम ये बयान करता है शागिर्दों के साथ, बुजुर्ग पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ उस पहाड़ के ऊपर है, यहां पर खुदा यीशु मसीह की सूरत जलाली हो गई थी। खुदा का कलाम कहता आसमान फिर खुला, फिर कंफर्मेशन हुई कि खुदा ने अपने आसमान को खोल दिया है, तुम्हारे दरमियान है, कहा देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये सिलसिला जारी और सारी है, ये सिलसिला चलता रहता है। लोग हैरान हो जाते हैं, जो हवाला हमने मुकद्दस यहूदा की इंजील में से सुना उसको थोड़ा सा आगे जाके पढ़े। यहाँ पर नतनएल खुदा यीशु मसीह के पास आता है फिलिप्पस के जरिए से, तो खुदा का कलाम बयान करता है जब यीशु मसीह ने नतनएल को देखा, तवज्जो से सुने, तो कहा ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं, ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। हमारे बारे में कोई कह सकता है ये फिल हकीकत मसीही है, इसमें मकर नहीं। ये जैसा क्रिसमस के दिन रहता है वैसा ही सारा साल रहता है, ये जैसा सारा साल रहता है वैसा ही क्रिसमस के दिन रहता है। क्या हमारे बारे में कोई कह सकता है? यहाँ पे मकर का मतलब है 2 नंबरी, ठीक है, झूठ है, फरेब है, इधर इबादत कर ली तो बात नू रात नू बद जातियां, नशाबाजियां, लड़ाइयां झगड़े, नट लौट, ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है नतनएल ने कहा तू मुझे कहां से जानता है? खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, इससे पहले कि फिलिप्पस तुझे बुलाता मैं तुझे जानता था। फरिश्ता खुदावंद हम सब के बारे में सब कुछ जानता है, खुदावंद हमारे सब के बारे में सब कुछ जानता है, इस बात को याद रखें। खुदा का कलाम बयान करता, फिर उसने गवाही दी, उसने कहा है खुदावंद ए रब्बी तू इसराइल का बादशाह है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है। और यीशु मसीह ने इस बात की कंफर्मेशन करते हुए बोला, क्या कहा कि नतनएल क्या तू इतनी सी बात से ईमान लाया है कि मैंने कहा मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम पर फरिश्तों को उतरते और जाते हुए देखोगे। आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम पर फरिश्तों को उतरते और जाते हुए देखोगे। खुदा का कलाम बयान करता है जब वो सलीब के ऊपर था, जब खुदा का कलाम बयान करता है बिगड़े हुए बर्तन को सीधा करने के लिए अपना खून बहा रहा था, जब आसमान को फाड़ के नीचे आ रहा था, खुदा का कलाम बयान करता जब सलीब के ऊपर कहा कि इट इज फिनिश्ड नाउ, तमाम हुआ, और जब कहा मेरी बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, खुदा का कलाम बयान करता है उसी मसरूबियत के पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि सारी कायनात पर खुदा का कलाम बयान करता तारीफ की इच्छा आ गई और जलजला आ गया, सारी जमीन सारा आसमान हिल गया, क्योंकि खुदा ने आसमान को फाड़ दिया था, खोल दिया था। खुदा का कलाम बयान करता निजात के लिए इसलिए जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो फिर साबित कर दिया कि खुदा ने इस इंसान को, इस मखरसी के काम को इंसान के लिए मुकम्मल कर दिया। और दिल चो डर दूर करने लिए की कीता, उदों ही नहीं इधरों जिंदा हुए ने अगले दिन आसमान ते 40 दिन खुदा का कलाम बयान करता है, काम करते रहे, खिदमत करते रहे, कन्फर्म किया, डर को दूर किया, खौफ को दूर किया। खुदा का कलाम कहता है 40 दिन के बाद फिर आसमान खुलता है, काश के तो आसमान को फाड़ दे। खुदा का कलाम बयान करता है जो आसमान को फाड़ के नीचे आया था ताकि दोबारा आसमान में जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां जिंदाबाद रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम ये बयान करता है काश तू आसमान को फाड़े, ये आसमान को फाड़ के हार गया था,
اور میرے عزیزو خدا کی شکر گزاری کریں. آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس التجا کے لیے، جس التجا کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے التجا کی تھی، جو ہر انسان کی التجا تھی، خدا اس کے جواب میں آسمان کو چیر کے نیچے آ گیا. اور خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، پھر جاتے ہوئے پتا کیا کہا؟ اس بات کو توجہ سے سننا ہے، نہایت برکت والی بات ہے، یہ سارے کلام کا اجر ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے آسمان میں واپس چلا گیا تو آسمان کو بند کر دیا. اس نے کہا تھا کہ آسمان کو کھول دے تو واپس چلا گیا تو بند کر دیا. بند نہیں کر دیا میرے عزیزو. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا اور میں تمہیں دیتا ہوں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اپنی کلیسیا کو کہا، خدا کے خادموں کو کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے نام سے زمین پر باندھو گے، جو کو زمین پر کھولا گے، اس لیے کہ میں اس دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے تالا کتنا کھولنا ہوں جی چابی نہ تے آسمان پتا کہ چابی نہ کھولتا. داؤد کی کنجی، داؤد کے گھرانے کا شیر ببر، یہودا کا شیر ببر، یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ آسمان کی چابی ہے، کھل جاتا اس کے نام سے. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا کے ان لوگوں میں شامل ہوں، خدا کے ان خادموں کے ساتھ شامل ہوں. آپ اس کلیسیا میں شامل ہیں جو آج بھی مسیح کو پکارتی ہے. سارے چینل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آسمان کھل جاتا ہے اور خدا کی برکت، اس کی فیورز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں سے درجات دیں. اب آسمان آپ کے لیے بند نہیں ہے اور بند نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو ایک کی دے دی گئی ہے، لیکن میرے عزیزو جب تک اس کی کو، اس چابی کو، اس نام کو ہم استعمال نہیں کریں گے، میرے عزیزو ہمارے لیے آسمان کھل نہیں سکتا. غور کریں، ہمارے لیے آسمان بند تو نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ دیکھیں، اس لیے کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اب ایک دفعہ اور خدا آسمان کو کھولے گا. فائنل ٹائم ایک دفعہ اور خدا آسمان کو کھولے گا جب یہ خدا کا بیٹا واپس آئے گا. ہمیں ٹائم پیریڈ دے دیا گیا، بنی اسرائیل کو ٹائم پیریڈ دے دیا گیا تھا. اپنے آپ کو کمہار کے ہاتھوں میں دے دیں، دستکار کے ہاتھوں میں دے دیں، تخلیق کار کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ کو درست کر دے، ساری کمیاں خامیاں دور کر دے. 2023 کا کرسمس یہ کہتا ہے. کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس آسمان کے کھلنے کے لیے، اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے، ہمیشہ تک ابدیت میں رہنے کے لیے، خدا کا کلام کہتا ہے جہاں نیا آسمان اور نئی زمین آپ کے لیے تخلیق کی جائے گی، آپ خدا کے ساتھ رہیں گے. اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ جانے والے بن جائیں. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ جب ہم کلام مقدس میں سے انسان کی عمر کے تعلق سے پڑھتے تو 1000 سال سے انسان کی عمر پیچھے کو آئی ہے، آگے کو نہیں گئی، پیچھے کو آئی ہے. اور آج کا انسان کی اوسط عمر جو 60 سال سے بھی کم گنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، قوت ہو تو 80 برس خدا کا کلام بیان کرتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے. 2023 کا کرسمس، اس وقت میری عمر 40 سال 50 سال 20 سال 30 سال یا سے کم یا سے زیادہ ہے، ڈزنٹ میٹر مچ. سوچنا یہ ہے جب آسمان دوبارہ کھلے گا، آپ کی اس دعا کا جواب دیا جائے گا، آپ کدھر جائیں گے. اور آمد ثانی کے تعلق سے خدا کا کلام اس کی 2 تہیں بیان کرتا ہے. ایک نادیدنی پوشیدہ آمد ہوگی جس میں لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. لکھا 2 عورتیں کام کرتی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی. 2 لوگ کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا. شورٹی ہے کہ آپ کھلے ہوئے آسمان میں جا سکیں گے اس کے ساتھ؟ اگر تو ہے دن ویل ڈن، خدا کی شکر گزاری کریں. اور اگر شورٹی نہیں ہے، آپ کا دل گواہی نہیں دیتا، تو پھر سوچ کے جائیں، یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں. آسمان آپ کے لیے کھلا ہوا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ معمولی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا تھا اس کو مہار کے ہاتھ میں بھائی بنیامین وہ برتن کیا ہو گیا تھا؟ بگڑ گیا تھا، اور دوبارہ اسے درست کیا گیا، اسے اچھی خوبصورت سراہی بنا دی، گلدان بنا دیا جو بادشاہ کے سامنے رکھا جاتا تھا. مسیح نے بھی آپ کے لیے ایسا ہی کیا، اور آپ کو یہ موقع دیا ہے اس دستکار کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں. روح القدس کے ہاتھوں میں قوت میں دے دیں اپنے آپ کو، اور یہ زندگی کا پانی رات دن لگائیں اپنی زندگیوں کو، خاندانوں کو، تاکہ آپ سدھر جائیں. ایک لڑکے کے بارے میں، نوجوان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی جاتی ہے. ذرا توجہ سے، دھیان سے، مہربانی سے بیٹے بیٹیاں سنیں.
जरा गौर से देखें, चेक करें कि आप किस कदर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो नौजवान जो था, दो भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। तो छोटा जो था वो कॉलेज में भाई सोना पढ़ता था, लेकिन हुआ ये जैसा अक्सर हमारी जिंदगी में होता है, बुरी सोबत का शिकार हो गया, बुरे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया। जब घर में वापस आते उसका भाई उसे समझाता, उसकी वालदा उसे तलकीन करती, बाप उसे समझाता, और वो आज के मॉडर्न लोगों की तरह से तानू का पता मैं नहीं सकता। एक गल याद रखो, जिंदगी ताड़े माँ बाप तो ज्यादा कोई भी ताड़ा ख्याल खा नहीं जिंदगी हो सकती। जो आपको कुर्बानियां देके, जो पहले दुआएं करके आपको खुदा से मांगते हैं, बाद में कुर्बानियां देके आपकी परवरिश करते हैं, उनसे ज्यादा मुखलस आपके साथ कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता। उनकी बातें भी लोग सुनते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है क्रिसमस के तलक से, यीशु मसीह के तलक से ये लिखा हुआ है कि उससे पहले जिस न पेशरों को भेजा जाएगा, वो क्या करेगा, वालदों के दिल औलाद की तरफ और औलाद के दिल वालदों की तरफ जो है वो मुतवज्जो करेगा। आज नाफरमानियां देखिए, उसको समझाते थे ना माना जी, क्या हुआ, वही बात बन गई। बुरे दोस्तों के साथ बैठा, किसी जगह पर वो किसी लूटमार करने के लिए गए, वहां पे हाथापाई हुई। उसी दौरान उस शख्स ने क्या किया तो उन सामने मिलके ही एक शख्स जो था उन्होंने कत्ल कर दिया, एक शख्स को मार दिया। और बाद में क्या हुआ, वो सारे लोग उसको कहने लगे, वो तुझे तो ये कहा था कि उसको बरे कर, तूने तो यार बंदा ही मार दिया। दूसरे कहा तुझे मारने के लिए थोड़ी कहा था, ओ भाई तुझे तो गाने इसलिए दी थी कि डराना था, तूने तो बंदा ही मार दिया। ये कह के बाकी सारे चारों के चारों भाग गए, वो अकेला वहां पर रह गया और इतना पजल हो गया कि अपनी मोटरसाइकिल बाइक छोड़ के वहां से निकल गया, घर की तरफ दौड़ा। पुलिस आई, मोटरसाइकिल वहां थी, जब देखी उन्होंने स्कैन किया, उसके जरिए से पता लग गया कि फलां आदमी है, फलाने का एक मोटरसाइकिल है। चले गए, भागा जा रहा है, साथ चढ़ा हुआ, तवज्जो से सुने बात, इसके बाद हम दुआ करेंगे। भागा जा रहा है, बेतहाशा दौड़ा जा रहा है, घर पहुंचा, जड़ल से जाके अपने दरवाजे में गिरा। उसकी माँ ने कहा खैर तो है, कपड़े खून में लथपथ थे सारे के सारे। खुदा का वो बड़ा परेशान है। तो जब उसके भाई ने देखा, उसने कहा खैरियत तो है। तो वो जैसे अफरा तफरी में आप बताते हैं, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया, मैंने कत्ल कर दिया किसी शख्स। उन्होंने कहा बाकी बातें बाद की हैं, अब मसला क्या? कहता पुलिस मेरे पीछे है। कहता जल्दी कर ये कपड़े उतार दे। अपने भाई को कहता जल्दी कर ये कपड़े उतार दे, और अपने कपड़े उतार के जल्दी जल्दी उसे पहनाए। उसके खून आलूदा कपड़े उसने खुद पहन लिए और वालदा को कहा इसे नहलाएं धुलाएं, इसे खाना दे, चाय दें। अब ये बात कर रहे थे, पुलिस आ गई, दरवाजा नॉक हुआ, वो बाहर गया। उन्होंने कहा पूछता है क्या है, तेरा ही मसला है, तुझे ही तो लेने के लिए आए हैं साहब। उन्होंने कहा बात तेरे कपड़े बता रहे हैं तो खूनी है, तूने कत्ल किया है। उन्होंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, ज्यादती ना करें, लेकिन मुझे 1 मिनट का मौका दे दो, मैं अपने घर से बात करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। अंदर गया, गौर से तवज्जो से ये बात सुननी। खुदा का कलाम खुदा का खातम बयान करता है कि वो शख्स अंदर गया और उस भाई से कहा गौर से सुन, हम 2 ही भाई थे, मैं तेरा बड़ा भाई था, अब दोबारा गुनाह न करना, अब तेरे लिए मरने वाला कोई नहीं, अब तेरे लिए जान देने वाला कोई नहीं है, मैंने तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है, मैंने अपनी जान तेरे लिए दे दी है। खुदा का कलाम बयान करता है कि रास्तबाज के लिए भी कोई मुश्किल से अपनी जान देगा। शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई नेक आदमी के लिए जान देने की जरूरत करे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम उस छोटे भाई की तरह ही थे, सारे ही गुनाहगार थे, मसीह हम बेदीनों के खातर हुआ, जो यही कहने वाले थे आसमान को फाड़ दे और नीचे उतरा, वो आ गया। जॉन 3:16 के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें कहां से शुरू किया? खुदा का कलाम ये बयान करता है, इस चीज को देखने की जरूरत है। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस के अंदर उसे हमारा बड़ा भाई भी कहा गया, इसीलिए हमें बेटे बेटियां होने का ये फजल जो अपना उनकी तरफ से मिला है, उसने हमारे लिए सलीब पर खून बहाया, हमारी जान छुड़ा दी है, अब और कोई नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता आसमान के तले, देखिए यहां पर भी आसमान का लफ्ज़ है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। और भाई जरूरत इस बात की है कि जब खुदा ने हमारी दुआ को सुना, इसराइल की दुआ को सुना, आसमान खोल दिया, तो हमें कभी कभी, बल्कि मैं कहता हूं हमेशा आसमान की तरफ देखते रहना चाहिए। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जब मैं तेरे आसमान को देखता हूं जो तेरी कारीगरी है, तो इंसान फिर क्या है कि उसे याद रखे। मेरे अजीजों,
دیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے۔ آخری ایک بات ایک لائن مین کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دن بیان کیا کہ لائن مین آپ سمجھتے ہیں بجلی دے کام کر دینے باپ دادے بندے، تو بھائی بنیامین کھمبے کے اوپر کام کر رہا سی تے اوپر وہ کام کر رہے تو چھوٹے چھوٹے تاراں دے نا ٹوٹے تھلے کٹ کر کے سٹی جان دیا۔ ایک بندہ لاگوں نہیں لگیا، انہیں دیکھا تاراں بڑیاں پیاں نے ٹوٹے بڑے پے نے، انہیں لایا سا اس طرح کر کے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں واہ واہ سن، انہیں کٹھے کیتے ترن لگا، جو ترن لگا اوپر والے مان گیا بھائی کدھر نو، انہیں آ کے بیٹا چھوڑ کے نپ گیا۔ ٹھیک ہے، اکثر ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں کوئی دیکھتا تو نہیں، ادھر ادھر تو کوئی نہیں، اوپر کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جس سے دعا کی تھی کہ آسمان کو کھول دے اس نے آسمان کھولا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اوپر دیکھنے والا ہے، وہ اوپر دیکھتا رہتا ہے اور پھر آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو چیک کریں، وہ دیر کو نہیں بیچتا ہے کوئی نہیں، سارا آسمان اکٹھا کرو تو چلو۔ دنیا کے اندر بھی ساڈا حساب کتاب اسی طرح نہ رہتا، انج تے نہیں بننا، بلکہ ہم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف لگا کے رکھنی ہے، انتظار کرنا اور اپنے آپ کو پیار کرنا ہے۔ خدا مجھ سے دعا ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑھیں۔